Hello guys, welcome to my channel. Get knowledge from my channel. So today's topic is weathering in soil formation of geography chapter. So today we will deals with geography chapter. So without wasting time, let's start it. Okay. So weathering and soil formation introduction. The Earth is the only planet that supports life. This is because the life sustaining elements such as land, water, and air is present on the Earth. The three main components of the Earth are land or lithosphere, the sphere of rocks, water or hydrosphere, the sphere of water, and the air or atmosphere, the sphere of air. सो हम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और ये भी जान लें कि वेदरिंग इन सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है. वेदरिंग मतलब रॉक्स का ब्रेक डाउन. रॉक्स जब टूटते हैं तो वेदरिंग कहलाता है प्रोसेस. एंड सॉइल फॉर्मेशंस जब रॉक्स टूटते हैं तो वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं. रॉक्स क्यों किस तरह से टूटते हैं? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सीजनल कंडीशंस के कारण ही वेदरिंग होता है. लाइक रेनीज, समर, विंटर एक्सेट्रा. ओके, सो एंड हमारे अर्थ में ये 3 डोमेन्स होते हैं अर्थ में और कंपोनेंट्स चाहे डोमेन्स विच इज़ लिथोस्फीयर hydrosphere and atmosphere. What is lithosphere? Land. And land means rocks. Lands में ज़्यादा क्या होते हैं? Rocks होते हैं, soils होते हैं, है ना, soils होते हैं. That makes the land. Hydrosphere only deals with water. Hydrosphere deals with water. And atmosphere, air. मतलब air. That's talk about air. So it's containing atmosphere. Okay, so we deals with atmosphere, hydrosphere, and lithosphere. Okay, atmosphere which is air and containing atmosphere. As we know, atmosphere definition is what? Is the blanket of air is called atmosphere. What is that? The definition is the blanket of air. The blanket of air is called atmosphere. Is it clear? Now talk we about next zone. The last zone is biosphere, in which all living creatures live, like us, animals, plants. Okay, so in this zone, all biosphere lives. As one thing you have to know more, that is, biosphere is made up of lithosphere, hydrosphere and atmosphere, or we say need. बायोस्फीयर नीड्स मतलब बायोस्फीयर में जो है वो बन पाया है बस किस कारण से? लिथोस्फीयर से, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से. बायोस्फीयर को इन तीनों की बहुत ज़रूरत है अगर उसे रहना है तो. इफ़ it have to live, it needs all the 3 domains of the earth. It's lithosphere, hydrosphere and atmosphere. ठीक है? It is clear? Okay, is it clear? Okay, so बायोस्फीयर में आ गया कि बायोस्फीयर को all 3 डोमेन्स चाहिए रहने के लिए. तो बायोस्फीयर क्लियर, एटमॉस्फेयर क्लियर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, all 4 domains is clear. Okay, and in this zone the 3 main components of the earth meet, overlap and interact. This zone contains all forms of life. सारे forms of life होते हैं और एक दूसरे पे वो सब निर्भर होते हैं. If one of them is excluded from the composition of the earth, life is present from would disappear. अगर इनमें से कुछ भी गायब हुआ मतलब नहीं है तो हमारा लाइफ जो अर्थ पे है वो डिसअपियर मतलब ख़त्म हो जाएगा. जितनी तो हमको एटमॉस्फेयर ज़रूरत है ब्रीथ करने के लिए, हाइड्रोस्फीयर हमको वाटर पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, लिथोस्फीयर टू लीव. बिना लैंड के तो हम पानी में घर बना नहीं सकते हैं, ना ही एयर में. लैंड चाहिए होगा घर बनाने के लिए. ठीक है. Earth's surface has been undergoing continuous change as a result of geological process due to factors like temperature, pressures. There are 2 types of pressures, the internal and external, which are responsible for producing these changes on the earth. दो फोर्सेस निर्भर करते हैं अर्थ सरफेस पे. उनके कंटिन्यूस चेंजेस से
जियोलॉजिकल प्रोसेस से अर्थ सरफेस पे दो फोर्सेस जो हैं निर्भर करते हैं, दो टाइप्स होते हैं जिससे अर्थ क्रस्ट हमारा बनता है. व्हाट डू मीन विद अर्थ क्रस्ट, ये हम पहले जानेंगे. उससे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस की बात की जाए, एक्सटर्नल फोर्सेस की बात की जाए तो दीज आर लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, okay, lithosphere and hydrosphere, hydrosphere and atmosphere. Okay, these are the domains of the earth, domains of the earth which makes the earth crust, atmosphere, and at last it is biosphere. Okay, biosphere. Is it clear? So these are the external forces, and when we talk about internal forces, so when we talk about internal forces, is it what it is? um, the crust, mantle, and core. These are what? When I tell that what is crust, what is mantle, and what is core, so like that it is the earth, and this the layers. These layers are here. These layers are made here. That's core. Mantle. That's crust. Sorry, it's not core. It's crust. Wait a minute. It's crust. Sorry, it's crust. It's mantle. And it is core. Core have also two parts. Core have two parts. Two parts होते हैं core के. That is inner core and outer core. Two types होते हैं core के, वो है inner core और outer core. ठीक है. मेंटल एंड कोर बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्मा और वी से लावा विच आर गोइंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज. जैसे वोल्केनो से लावा और मैग्मा निकलते हैं, उसी तरह से मेंटल एंड क्रस्ट में वो रहते हैं. ठीक है. बात की जाए क्रस्ट की, तो क्रस्ट पे हम रहते हैं. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, टॉप मोस्ट लेयर होता है अर्थ का. क्या होता है? क्रस्ट होता है टॉप मोस्ट लेयर. ठीक है. टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होता है क्रस्ट, जिसपे हम रहते हैं. क्रस्ट पे जो है बोल सकते हैं रॉक्स से बने होते हैं. और जब हम क्रस्ट और रॉक्स की बात करते हैं तो हमें कौन सी डोमेन्स ऑफ द अर्थ में आ जाता है? तो जब हम बात करते हैं उसकी तो आता है लिथोस्फीयर, क्योंकि लिथोस्फीयर में ही हम रहते हैं. एंड लिथोस्फीयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ रॉक्स. तो लिथोस्फीयर मतलब क्रस्ट जो है लिथोस्फीयर में ही है. ठीक है. क्लियर. रॉक्स जो होते हैं, रॉक्स वो मिनरल्स, रॉक्स जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो मिनरल्स से बने होते हैं. टॉक अबाउट दिस, तो हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जानते हैं मोर अबाउट इट. Rocks play an important part in geography. Rocks made up of most of the solid materials of the lithosphere. The substance of which rocks are made are called minerals. Thus, rocks are aggregates of minerals and have no definite chemical composition. उनकी कोई chemical composition नहीं होती है, और वो जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द मिनरल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. एग्रेट्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स के कॉम्बिनेशन से जो है रॉक्स बनते हैं. ठीक है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ द मिनरल्स में आएगा एग्रेट्स. यहाँ पे जोग्राफी आएगा. जोग्राफी मतलब यहाँ पे क्या होता है? द स्टडी ऑफ अर्थ एंड मिनरल्स, द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड इट्स सरफेस. जब हम उसके रॉक्स और उसके सरफेस के बारे में बात करते हैं तो वो जोग्राफी कहलाएगा. और रॉक्स किससे बनते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स से बनते हैं, और उनकी कोई डिफरेंट कॉम्पोजिशन नहीं होती है.
सम रॉक्स जो होते हैं कंटेन करते हैं मेटल्स, और वो मेटल्स कहाँ से निकाले जाते हैं? वो जो है एक्सट्रैक्ट होते हैं इकोनॉमिकली, खोदा जाता है, खोद की कई सारी मेटल्स निकाले जाते हैं और कुछ रॉक्स उन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। सच रॉक्स आर कॉल्ड ओर्स, जो मेटल से बने रहेंगे। रॉक्स जो होते हैं जो मेटल से बने रहेंगे, रॉक्स आर मेड ऑफ मेटल्स, जो मेटल से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो जो हैं ओर्स कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड ओर्स, ठीक है, समझ में आ गया? जैसे आयरन ओर, ठीक है। All earth materials consist of rocks and minerals. By definition, a mineral has a different chemical composition with its own chemical and physical properties, such as silicates and quartz. Minerals के पास different composition and physical होता है, different composition, chemical composition and physical composition होता है, but जब वो रॉक्स मिक्स होते हैं तो फिर उनके पास कोई chemical composition different नहीं होता है, ठीक है? Is it clear? Let's talk about importance of rocks. What is the importance of rocks? First of all, in my words, the rocks importance is of making the soil. वो soils बनाते हैं, making soils. लेकिन अगर उनकी weathering हुई पहले तो फर्स्ट weathering ज़रूरी है, weathering होगी तभी rocks में वो convert हो पाएंगे. Rocks are useful for building material. Rocks are distribution, break up into fine particles. Distribution मतलब ही होता है breaking. Distribution मतलब क्या होता है? breaking, ठीक है, breaking, ठीक है, ओके. Which form soil? मैं बताया कि जब वो टूटते हैं फाइन पार्टिकल्स में तो वो सॉइल बनाते हैं, और सॉइल किसके लिए जरूरी है? क्रॉप्स के लिए, फॉर एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है, ठीक है, समझ में आ गया? फिर रॉक सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए रॉक जो है सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चे माल, ठीक है. रॉक सप्लाई प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी. रॉक जो है सप्लाई करते हैं प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड एंड सिल्वर को, जो मेकिंग करते हैं, ज्वेलरी को बनाते हैं, ठीक है. Then talk about types of rocks. On the basis of their formation, rocks are classified into 3 types. 3 टाइप्स में रॉक्स को क्लासीफाई किया जाता है: इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. इग्निशियस रॉक, इग्निशियस का मतलब होता है फायर. इग्निशियस रॉक जो होते हैं वो मॉल्टन मैग्मा का सॉलिडिफाइड से बनते हैं. जब वोल्केनो से लावा मैग्मा निकलता है और सरफेस पे जब जाता है तो वो जो है फिर वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे उस लैंड पे वो सॉलिडिफाइड होगा. क्या होगा? सॉलिडिफाइड होता है मतलब कि जमना. सॉलिडिफाइड मतलब जमना. सॉलिडिफाइड मतलब जमता है, और वहाँ पे वो, और उसके इनसाइड द अर्थ में भी, अर्थ के अंदर भी और अर्थ के बाहर भी, दोनों जगह पे जब मॉल्टन मैग्मा जब जमता है तो वो इग्निशियस रॉक को फॉर्म करता है. इग्निशियस रॉक जो होता है उसका मतलब ही होता है फायर, और मॉल्टन मैग्मा में क्या होता है? गर्म होता है, फायर टाइप का होता है. इग्निशियस रॉक को पेरेंट रॉक भी कहा जाता है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए. अदर रॉक्स आर मेड अप ऑफ 85% ऑफ अर्थ क्रस्ट. काफ़ी रॉक्स 85% ऑफ अर्थ क्रस्ट में बनते हैं. टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक: इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. मैं यहाँ पे तुमको पहले से बता दिया गया कि वो अर्थ के अंदर बनते हैं और अर्थ के बाहर बनते हैं. यही बताया गया है यहाँ पे भी, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव में भी. इंट्रूसिव मतलब अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ के इनसाइड में, ठीक है. और एक्सट्रूसिव मतलब आउटर सरफेस पे, ठीक है, आउटर सरफेस पे. इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव क्लियर हो गया ऐसे ही, तो बस हम पढ़ लेते हैं जल्दी. Intrusive rocks are formed at some depth of the earth crust when the molten magma solidified under great pressure, resulting in the formation of rocks. Granite, जैसे एग्जाम्पल में आ गया मेरा ग्रेनाइट, ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है.
इससे भी नोट कर लीजिए कि ये जो है इट्रोसिव रॉक में आता है, इट्रोसिव एक्नीशियस रॉक में आता है। एक्सट्रूसिव में क्या आता है? बसाल्ट। Extrusive rocks were formed by the pouring out of magma, either through volcanoes or through cracks and crevices. They cooled rapidly and solidified on the Earth's surface. They are non-crystalline. Example: basalt. Igneous rocks are generally very compact and do not wear out easily. जल्दी टूटते नहीं है वो, ठीक है? wear मतलब जल्दी टूटते नहीं है वो. Okay, and talk about the examples. That is basalt, granite, feldspar, and pumice, etc. Okay, the ores of metals which are valuable to man are generally associated with igneous rocks. वो ores of metal जो valuable होते हैं man को, वो igneous rocks से ही होते हैं, ठीक है? Talk about next type of rock, that is sedimentary rocks. तो sedimentary rocks जो होते हैं वो layers of the rocks से बनते हैं, ठीक है? layers forming layers. उसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और भी जानते हैं उसके बारे में. दे आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स मतलब बचे चीज़ों से बनते हैं, है ना? इसके हम 3 टाइप से पढ़ेंगे. बचे कुचे से बनते हैं, मैकेनिकली रॉक्स के टूटने से बनते हैं, ठीक है? सेडिमेंट मतलब पता चल जाए बचना, क्या बचना है? बचना पता चल जाए, सेडिमेंट, ठीक है? Accumulated over long period of seasons and long periods of seas, lakes, rivers and glaciers. They deposit in the distant layers of strata, hence called stratified rocks. इन्हें layers में बनते हैं और इसलिए इसे layers और strata का कहते हैं और इसे हम stratified rocks भी कहते हैं. यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई. यहाँ पे जो आपका ओर्स यहाँ पे रिपीट हुआ था, ओर्स, इस ओर का मतलब होता क्या है एक्चुअली? तो ये होता है टाइप ऑफ मेटल ऑफ रॉक्स विच आर फाउंड इन लिथोस्फीयर. एक टाइप से मेटल का टाइप है जो ऑफ रॉक का में जो लिथोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है? लिथोस्फीयर में पाया जाता है. फिर अब सेडिमेंटरी समझ में आ गया कि और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स ओल्डर रॉक्स के टूटने से ये सबसे बनते हैं. इनके एक्शन होते हैं, इनके टूटने के एक्शन कैसे होते हैं? विंड से, रनिंग वाटर से, ग्लेशियर, डेंड्रेशन मतलब ब्रेकिंग. काफ़ी मीनिंग्स अभी मिल गए हैं ब्रेकिंग के, ठीक है? फिर चलते हैं तीनों टाइप्स पे. तो 3 टाइप्स होते हैं: मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्स और केमिकली फॉर्म्ड. मैंने आपको कुछ लिखा भी है काफ़ी चीज़ें. जो मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं वो बेड ऑफ द रॉक्स में होते हैं और रॉक्स के टूटने से मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है ना? ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, जब रॉक्स टूटते हैं, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, जब रॉक्स टूटते हैं काफ़ी रॉक्स, तो वो फिर क्या होते हैं? कंबाइन हो जाते हैं. जो टूटे फूटे रॉक होते हैं कंबाइन हो जाते हैं एंड कंबाइन से मेरा मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक आता है. मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक आता है, ठीक है? मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक आता है, ठीक है? तो काफ़ी रॉक्स टूटते हैं, टूटने के बाद फिर वो मिलते हैं और मिलने के बाद ये मेरा मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स होता है. इज इट क्लियर? ओके, सो these rocks contain of fragments of waste and distribution of breaking up other rocks. या काफ़ी waste भी वो रखते हैं उसमें. The agents of dendration break them further and transport them into new sites where they are deposited and form new sedimentary rocks like sandstone, shale and clay. Okay? Organically form sedimentary rock. Organically मतलब कि organs और organs किसके होते हैं? एनिमल्स के, प्लांट्स के. ऑर्गन्स प्लांट्स के नहीं होते. कैसे नहीं होते? स्टोमाटा हो गए या ऑर्गन्स हम नहीं कहते हैं, बट ऑर्गेनिकली फॉर्म्स में एनिमल्स के होते हैं और प्लांट्स में हम ले लेता है, मतलब कि उसका हमको मिला जुला बनाना है. तो ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब कि डेड एनिमल्स और प्लांट्स, मेरीन एनिमल्स और प्लांट्स के जो रिमेन्स बच जाते हैं तो उनके वो साथ में आ जाते हैं और वो साथ में जब आते हैं तब वो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करते हैं. वो भी किस तरह का? ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. इज इट सो कूल? इजंट इट कूल? है ना? पेट्रोलियम और रॉक सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डीके ऑफ प्लांट एनिमल रिमेन्स. ओके, टॉक अबाउट नेक्स्ट केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. तो वो केमिकली से फॉर्म होते हैं
इनके इनके जो है दो टाइप्स बोल सकते हैं हम. इट्स प्रेसिपिटेशन होता है और एवापोरेशन होता है. एवापोरेशन, ओके, इट्स टू टाइप्स पे निर्भर करता है. इट इज़ एवापोरेशन भी होता है और प्रेसिपिटेशन भी होता है. ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नाउ इट्स क्लियर टू यू एंड मी ऑल्सो. ठीक है, और दीज इंक्लूड सेडिमेंट्री रॉक्स मेड अप ऑफ केमिकल प्रोसेस से ये बनता है. ओके, फॉर्म सच एज रॉक्स फॉर्म विद डायरेक्ट केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल मैटर्स. डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन होता है तो जिप्सम एंड रॉक सॉल्ट. दे accumulate in salt lakes and lagoons through evaporation also. Some of these are arranged in the layers and covered with stratified shells and sandstones. These are called chemically formed sedimentary rocks. Is it clear to you all? Okay. Now let's talk about metamorphic rock. तो metamorphic rock जो होता है वो sediment plus igneous both के presence से होता है. देखते हैं, पढ़ते हैं. The term metamorphic is derived from metamorphosis, change of form. Form का change होना. When igneous and sedimentary rocks are subjected to extreme temperature and pressure, जब igneous और sedimentary rocks को extreme ज़्यादा temperature और pressure मिलता है तो वो complete change in form, अपने change form को change करने लगते हैं और अपने characteristic features को भी change भी होने लगेंगे और अपनी characteristic features को भी change करने लगेंगे और फिर उस टाइप में ही मेरा metamorphic rock पैदा होगा. मतलब रॉक्स बनेगा, नहीं रॉक्स बनेगा. और चेंज इन फॉर्म मतलब यहाँ पे कहाँ पे यूज हुआ? यहाँ पे जब एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ता है ना तो चेंज इन फॉर्म, यही दोनों कॉम्बिनेशन है. ये चेंज इन फॉर्म एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी. ठीक है, दैट्स फॉर्मिंग मेटामॉर्फिक रॉक. एग्जाम्पल दिख रहा है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं. नाउ दीज आर फॉर टेक्टोनिक मूवमेंट्स. दे आर फॉर्म टेक्टोनिक मूवमेंट्स. ठीक है, volcanic activity or heat and pressure. Limestone is changed to marble, clay shells to slate, granite into gneiss, basalt into schist and coal into graphite. Valuable मतलब कि किससे किससे वो चेंज हो जाते हैं, किस तरह से कौन किस समय चेंज हो जाता है, क्योंकि वो चेंजेस है ना, चेंज से ही होता है. तो कोल ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है. ठीक है, लाइमस्टोन मार्बल में, क्ले एंड शेल्स टू स्लेट में, ग्रेनाइट को जेनियस में, ओके, बसाल्ट को सिस्ट में. वेलेबल मिनरल्स सच एज गोल्ड सिल्वर एसोसिएटेड विद दैम. तो ये मेरे काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो किससे किस में चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर. नाउ लाइक टॉक अबाउट सॉइल फॉर्मेशन. ओके, so how the soil form? I tell you, because of the weathering of rocks, the soil are formed. Soil is one of the most valuable resources. It is an abiotic resource. What is abiotic resource? The deposition of the rocks and organic matter which are dissolved swept inside the rock. मतलब rock के अंदर घुल जाते हैं, मिल जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये मीनिंग इस तरह से यूजफुल हो जाती है. ठीक है, इट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ द लैंड. किस तरह से क्वालिटी है लैंड का वो डिटरमाइन करता है उस पर. इट फॉर्म द बेसिस ऑफ द एग्रीकल्चर. इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड नरिशमेंट टू द प्लांट. इट टर्न एनिमल्स एंड ह्यूमन्स गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स. लाइक टॉक अबाउट द थिन टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ फाइन रॉक पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर और फाइन रॉक पार्टिकल से बनते हैं. ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, ये भी मेरे सॉइल बनाते हैं. सॉइल जो है ऑर्गेनिक मैटर दैट डिकेइंग ऑफ द मैटर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल बींग्स, ये भी बनाते हैं. ठीक है, एनिमल बींग्स कैसे, कोई कोई होते हैं ना, जैसे मुस्लिम्स लोग ही बॉडीज़ को गाड़ देते हैं और फिर कब्रिस्तान कहते हैं, इस तरह से कुछ बोलते हैं. तो उससे भी क्या होता है ना, वो सॉइल फर्टाइल हो जाती है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन्स. Because of the humans, they are decaying, and that's containing humus. Okay, it's some soil. Soil is layered of unconsolidated layer. Okay, here whatever abiotic, not that the condition. No, abiotic is non-living things. I am forgot. Unconsolidated is there. Unconsolidated is the deposition of the rocks and organic matter. Okay, sorry for the huge mistake. I am forget. Abiotic is the natural resource. Okay. It is formed by breaking down of rock particles due to weathering and erosion.
the breaking down of rock particles with the weathering and erosion, it's so then it is from the breaking down of rock particles. जब rock particles टूटते हैं मतलब weathering होता है, it containing humus, वो humus contain करते हैं decayed plant, sorry, humus, decayed plant, animals, remains as well as living organisms, waters and air. Soil is no different and constant composition. It contains both decayed plants and animal substance. It consists of silica, clay, and chalk. Soil contains organic metals like humus, which is derived from the decomposition of plants and animals. Soil compost consists of two layers. The topsoil is the more very important. All crops are grown in here. It is very fertile. The subsoil is means two soils. In the first layer is containing humus and it's very fertile, and second soil is liquid that is a productive as topsoil. ये प्रोडक्टिव होता है, उत्पादक होता है, बहुत ज़्यादा ग्रो करता है. Okay, now in next class we will learn about soil profile and many other things, because the video is very long. So as you also going to bore in my class, I don't want this. That's why I'm ending here the class of up to soil profile. In next video, it's soil formation, and in the next video we will learn about soil profile. Many horizons are there. So thank you. कैसा लगा video? How you like the video? Please like and subscribe my video. Many have seen my video but they are not going to like. Please like and subscribe my channel. I have also made the physics chapter, which is energy, and history chapter uh, of slave dynasty. So please like all the videos, see the videos as you like it, and subscribe my video and share also. Okay, so thank you, have a nice day, bye bye.